Transmission of nerve impulse. In the normal condition, the outer side of the nerve fiber carries positive charge. This is a diagram of nerve, and this nerve fiber they are talking about in the normal resting condition, like if you are at rest, you are not doing anything, then your body is at rest, then the outer side of the nerve fiber carries always positive charge. This is the important thing. This is called polarized state. So the positive end of the nerve fiber is called polarized state. This polarization is due to more Na positive ions outside the axon membrane. अब ये polarization आई कहाँ से? Because to create positive charge there should be breakdown of some molecule, then that is because of the more Na positive ions. एक्सॉन मेम्ब्रेन की आउटर तरफ पे बहुत सारा Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से उसके इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है. ऑन स्टिमुलेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और हीट. स्टिमुलेशन मीन्स एक्सटर्नल सराउंडिंग से कांटेक्ट में आने पे या इंटरनल चेंजेस में द एक्सॉन मेम्ब्रेन एट दैट स्पॉट becomes more permeable to Na positive ion which move inwards and cause loss of polarization, depolarization. इस वजह से एक्सॉन मेम्ब्रेन की जो Na पॉजिटिव आयन्स वाली साइड थी वो परमिएबल हो जाती है, विच मूव इनवर्ड्स और अंदर की तरफ चली जाती है, एंड कोज लॉस ऑफ पोलराइजेशन, जिस वजह से Na पॉजिटिव जो है वो डीपोलराइज हो जाता है. पोलराइजेशन उस एंड पे ख़त्म हो जाता है. किस टाइम? रेस्ट कंडीशन में. रेस्ट कंडीशन में तो पॉजिटिव आयन रहेगा एट नर्व एंडिंग, बट स्टिमुलेशन में पॉजिटिव डिस्चार्ज हो जाएगा एंड इन दैट वे डीपोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगी. दिस इज नोन एज एक्साइटेड रीजन. सो at that time when polarization loss out and depolarization creates up, that then the nerve ending is called, in that case, in stimulation case, excited region. तब हम उसको excited region बोलते हैं. The point of depolarization becomes a stimulus for the next neighboring area. अब जो point of depolarization था, इस एंड पे जो पॉजिटिव डीपोलराइज हो गया है, अब वो एक स्टिमुलस बन गया है नेक्स्ट नेबरिंग एरिया के लिए, क्योंकि एक्सॉन एंडिंग जहाँ ख़त्म होती है वहाँ एक और डेंड्रॉन आकर उसके साथ अटैच हो जाता है और नेक्स्ट न्यूरॉन उसके कांटेक्ट में क्रिएट हो जाता है. तो वो डीपोलराइजेशन पॉइंट जो है वो नेक्स्ट नेबरिंग एरिया को स्टिमुलस प्रोवाइड कर देगा, मैसेज ट्रांसफ़र कर देगा एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, विच इन टर्न बिकम्स डीपोलराइज, जो फिर बाद में पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन रहेगी. Look at the diagram for and making it understand more clearly. Resting region में जो outer end है, due to accumulation of Na positive charge, nerve ending का outer end जो है वो positively charged हो गया है, and this is called polarized state. And in excited region, not in resting region, in exciting region, that positive disappears and converted into negative charge, and positive moves inward. Due to that, this is called depolarization state, and then this phenomena carries on, transfer to one nerve ending to other neighboring neuron, and then to other, and this process, with this process the messages are transferred from one neuron to other neuron. Like if you touch any hot object, then that hot object will transfer its signals to your brain and tell you that this is the hot object, don't try to touch it, otherwise you will get an injury. So this type of message from your fingertip moves to the brain via this electrical signals, via these positive and negative charges. Meanwhile, the previous area becomes repolarized. जो बीच वाला एरिया, पिछला एरिया था जो डीपोलराइज्ड हुआ था, उस पर फिर से चार्ज आ जाता है ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ Na पॉजिटिव, बिकॉज दिस मैसेजेस आर कंटिन्यूसली फॉरवर्डिंग अगेन टू द आउटसाइड. तो जो पॉजिटिव चार्ज अंदर चला गया था वो निकल के वापस से बाहर आ जाता है. दिस ट्रांसपोर्ट इज अचीव्ड बाय व्हाट इज कॉल्ड सोडियम पंप.
अब ये जो ट्रांसपोर्ट है पॉजिटिव आयन का, एक बार अंदर जाना, एक बार बाहर आना, फिर एक बार अंदर जाना, फिर एक बार बाहर आना, दिस इज कॉल्ड सोडियम पंप. एंड सोडियम पंप कैसे काम करता है? बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ योर बॉडी थ्रू ATP. कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन. तो इन टोटल यू कैन से दैट जो ये नर्व इम्पल्स है ये कैसे कंडक्ट करती है, कैसे ट्रेवल करती है? ये डीपोलराइजेशन पहले क्रिएट करती है, उसके बाद रीपोलराइजेशन करती है, फिर से डीपोलराइजेशन करती है, फिर से रीपोलराइजेशन करती है. बाय दिस फिनोमिना ऑल द मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम नर्व टू ब्रेन वाया नर्व इम्पल्सेस. डू नॉट कंपेयर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन अ नर्व फाइबर. कभी भी आपको नर्व इम्पल्स को नर्व फाइबर के साथ की कंडक्शन को नर्व फाइबर की कंडक्शन के साथ कंपेयर नहीं करना है विद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रिक वायर. कि जैसे इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है, आपने ऐसे नहीं कहना है कि नर्व फाइबर में भी नर्व इम्पल्सेस बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह कंडक्ट कर रहे हैं. इन द लेटर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में द इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली डू मूव अलॉन्ग द वायर. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ के अगली पोजीशन तक जाते हैं. लाइक दिस इज दियर इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आया, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आया, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आया. बट यहाँ नर्व फाइबर में क्या हो रहा है? यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन टर्न, ये नेगेटिव चार्ज था, वो इन टर्न अंदर जा रहा है, नेगेटिव बाहर आ रहा है. फिर नेक्स्ट टर्न में नेगेटिव अंदर जा रहा है और पॉजिटिव बाहर आ रहा है. सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड थ्रू अ वायर एट द स्पीड ऑफ 150,000 किलोमीटर पर सेकेंड. बट जो नर्व इम्पल्सेज हैं वो किस स्पीड पे चलती हैं? 100 मीटर्स पर सेकेंड ओनली. लाइक 1 सेकेंड में वो सिर्फ 100 मीटर कवर करती हैं. बट दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. बिकॉज ऑफ दैट आपको गर्म बाद में लगता है और आपको दिमाग को पहले ही पता चल जाता है कि आपको गर्म लग गया है एंड यू विल हैव टू रिमूव योर फिंगर टिप फ्रॉम देयर, अदरवाइज यू विल गेट एन इंजरी. सिनेप्स is the point of contact between the terminal branches of axon of a neuron with the dendrite of another neuron separated by a fine gap. Just like in that diagram, one neuron when finishes up, then another neuron attaches to it end to end. This is called this point where it attaches. This is called synapse. So moving back to it, at a synapse the nerve impulse jumps into another neuron. So at that point nerve impulse जो है वो jump करके दूसरे न्यूरॉन में चली जाती है. This is a chemical process. ये chemicals के थ्रू होता है. यहाँ एक chemical hormone होता है. As the impulse reaches the terminal end of an axon, जैसे ही impulse axon के terminal end पे पहुँचती है, a chemical acetylcholine is released. जैसे ही impulse यानी message एक्सॉन के टर्मिनल एंड पे पहुंचा, वैसे ही उस जगह से एक केमिकल रिलीज होता है विच इज़ नेम्ड एज एसिटाइलकोलिन. दिस केमिकल सेट्स अ न्यू इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन. ये केमिकल एक नया इम्पल्स जनरेट करता है अगले न्यूरॉन में. केमिकल इज सून ब्रोकन डाउन बाय एन एंजाइम, और तभी केमिकल को एक एंजाइम ब्रोक डाउन कर देता है टू मेक द साइनेप्स रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रांसमिशन, ताकि जो साइनेप्स है वो अगला ट्रांसमिशन, बिकॉज मैसेज ट्रांसफ़र जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो वो अगला ट्रांसमिशन कर सके. टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, देयर आर मेनी टाइप ऑफ न्यूरॉन्स. 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स विच send the signals from sense organ to nervous system. You can learn it from here: sensory, sense organ to nervous system. Motor neurons which send the signals from nervous system to muscles. M4 motor, M4 muscle. Association neurons are located in the brain and spinal cord which interconnect the sensory and motor neurons. इन दोनों signals को जो associate करता है, interconnect करता है, that is called association neurons. I hope it is clear to you.